پاکستان روس تعلقات کسی ملک یا حالات پر منحصر نہیں، وزیر اعظم شہباز شریف اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن میں ملاقات قازقستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان روس سے طویل معاشی تعلقات کی خواہش رکھتا ہے۔ روس سے تیل کی فراہمی کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں، ہمیں مستقبل میں تعلقات کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ روس کے ساتھ تجارت کو $1 ارب تک لے جانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ پاکستان اور روس کے درمیان بہترین تعلقات ہیں۔ دونوں ملکوں میں تجارتی روابط کی بدولت دو طرفہ تعلقات میں مزید بہتری آئی ہے۔ توانائی اور زراعت کے شعبوں میں ہم اپنے تعاون کو بڑھا سکتے ہیں۔ غذائی تحفظ کے شعبے میں بھی پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھائیں گے۔ روسی صدر پوٹن کا عزم کا اظہار۔ پاکستان روس بین الاقوامی تعاون کا اگلا اجلاس جلد ماسکو میں بلانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کی روسی صدر کو جلد از جلد پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت۔ وزیر اعظم کی ازبک صدر سے بھی ملاقات۔ کراچی پورٹ کو ترمیم سے منسلک کرنے پر تبادلہ خیال۔ ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے منصوبے کی جلد تکمیل پر بھی گفتگو۔ پاکستان ترکیہ اور آذربائیجان کے درمیان سہ کی بات چیت کا دور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک صدر اردوغان صدر آذربائیجان کے ہمراہ سہ کے اجلاس میں شرکت۔ تینوں ملکوں میں باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تفصیلی بات چیت۔ علاقائی اور عالمی امن و خوشحالی کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ پائیدار معاشی ترقی کی ترویج کے لیے علاقائی تعاون کے فروغ سے متعلق گفتگو۔ پاکستان ترکیہ اور آذربائیجان کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاکستان ترکیہ اور آذربائیجان کے ساتھ معیشت توانائی سیاحت و دیگر شعبوں میں سہ فریقی تعاون کو فروغ دینے پر یقین رکھتا ہے۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ شہباز شریف کا تینوں ملکوں میں معیشت اور سرمایہ کاری میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے حکمت عملی بنانے کی ضرورت پر زور۔ برطانیہ پر اگلے 5 سال کس کا راج ہوگا؟ فیصلہ آج ہوگا۔ برطانیہ میں انتخابی دنگل۔ ووٹنگ کے لیے 40,000 سے زائد پولنگ اسٹیشنز قائم۔ پولنگ مقامی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے رات 10 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گی۔ انتخابات کے نتائج کا اعلان 5 جولائی کو کیا جائے گا۔ پارلیمنٹ کی 650 نشستوں کے لیے برٹش پاکستانیوں سمیت سیاسی جماعتیں اور آزاد امیدوار میدان میں ہوں گے۔ کسی بھی جماعت کو ہاؤس آف کامنز میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے کم از کم 50% یعنی 326 نشستیں جیتنا لازم ہے۔ برطانیہ میں 39 لاکھ مسلمان کسی بھی پارٹی کی جیت اور ہار میں اہم کردار ادا کریں گے۔ گزشتہ انتخابات میں زیادہ تر مسلمان لیبر پارٹی کے حامی تھے، لیکن اس بار غزہ جنگ کے پیش نظر رجحان بدلتا دکھائی دے رہا ہے۔ آن لائن سروے کے مطابق برطانوی مسلمانوں میں لیبر پارٹی کی مقبولیت 80 سے کم ہو کر 63% ہو گئی۔ 38% نے فلسطین کے حامی آزاد امیدواروں کو ووٹ ڈالے۔ بانی پی ٹی آئی کا جماعت میں دڑے بندی اور فارورڈ بلاک کا نوٹس۔ ناراض ارکان کو ملاقات کے لیے آج اڈیالہ جیل طلب کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی نے شہریار آفریدی، جنید اکبر، شندانہ گلزار کو وضاحت کے لیے بلایا۔ بانی پی ٹی آئی ناراض ارکان کے تحفظات سنیں گے۔ حکومت مخالف تحریک سے مختلف اہم ہدایات دیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، شبلی فراز، رؤف حسن بھی ملاقات کریں گے۔ ہمارے سب لوگ متحد ہیں۔ پی ٹی آئی میں کوئی گروپ نہیں، جتنا مرضی زور لگا لیں کوئی پارٹی کو نہیں توڑ سکتا۔ جو تحریک انصاف چھوڑے گا اس کو ووٹرز مسترد کر دیں گے۔ جو پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کی عزت ہوگی۔ جب تک ووٹ کا تقدس نہیں ہوگا ملک میں کوئی آپریشن کامیاب نہیں ہوگا۔ بابر اعوان کی میڈیا ٹاک۔ توڑی وہاں ہماری پارٹی ختم ہو گئی۔ پی ٹی آئی کو کبھی چھوڑا ہی نہیں، دوبارہ جوائن کرنے کا سوال ہی نہیں بنتا۔ ہر سیاسی جماعت میں مختلف خیالات کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ کسی بھی سیاسی جماعت میں اختلافات ہونا کوئی انوکھی بات نہیں۔ چھوٹے لوگ دوسروں کا راستہ روک کر اپنا قد بڑھانا چاہتے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا انٹرویو۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کا کیس۔ سیکرٹری دفاع داخلہ، چیف کمشنر اور پولیس افسران پر جرمانوں کے فیصلے کے خلاف اپیلیں خارج۔ وفاقی حکومت کی عدالت سے 1 ماہ کا مزید وقت دینے کی صدا۔ کتنا وقت دیں؟ آپ ہر بار وقت مانگ لیتے ہیں۔ ہر بار آپ آ کر کہہ دیتے جاتے ہیں کہ پروگریس ہو رہی ہے۔ کئی سال گزر گئے، لاپتہ افراد کہاں ہیں؟ آپ ایک کام کریں، جو کام آپ نے ہمارے ساتھ کیا مہربانی کر کے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کریں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ عدالت نے جبری گمشدہ افراد کمیشن کی کارروائی پر بھی سوال اٹھا دیا۔ حکومت جبری گمشدہ افراد کمیشن کے لیے کیا کرنا چاہتی ہے جو کسی کام کا نہیں ہے؟
क्या कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को तनख्वाहें भी मिलती हैं? क्या ये जबरी गुमशुदा अफराद कमीशन कौमी खजाने पर बोझ नहीं है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। इस हवाले से तो कमीशन ने बताना है, कमीशन ने 10,500 से 7,500 केसेस निपटाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, ये अदाद-उश-शुमार ले जाकर डी चौक पर लगा दें, बस ये अदाद-उश-शुमार ही है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। सेहत की सहूलियत आवाम की दहलीज तक पहुंचाना मेरा ख्वाब है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तमीर नो तक सर्विसेज में बेहतरी मुमकिन नहीं। मराकज़ से सेहत को अपग्रेड करने से बड़े अस्पतालों में रश कम होगा। गुज़िश्ता 4 साल हेल्थ समेत हर शोबे में गुड गवर्नेंस का बहरान रहा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म्स के लिए इजलास में हम फैसले। वज़ीर आला पंजाब का मराकज़ सेहत की तमीर मुरम्मत मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का आटे के निर्खों के गलत अदाद-उश-शुमार पेश करने पर नापसंदगी का इजहार। पाकिस्तान क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड की कैटेगरी के मुताबिक आटे का निर्ख तयन करने का फैसला। मरियम नवाज ने आटे के मार्केट निर्ख की डेली रिपोर्ट तलब कर ली। मुआफियास को आवाम का इस्तेसाल नहीं करने देंगे। आटे के निर्ख नाजायज़ तौर पर बढ़ाने की इजाज़त नहीं दूंगी, वज़ीर आला मरियम नवाज। बजट स्पीच मेरी आप सुन लें। पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ेंगी, अफराद ज़र है वो बढ़ेगी, और बिजली और तेल की कीमतें, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ेंगी। पाकिस्तान के काश्तकारों की मेहनत कशों की गंदम इन्होंने खरीदी नहीं। उन्होंने कहा जी हम लोग गंदम अपनी एक्सपोर्ट करेंगे। ये कहाँ की अक्लमंदी है? पूरी दुनिया इनको कह रही है कि जी ये पिछला इलेक्शन रिग्ड इलेक्शन था, फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। पूरी दुनिया कह रही है इलेक्शन धांधली ज़दा थे, नए इंतखाबात कराए जाएं। बजट तकरीर में कहा था पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई होगी, बिजली और गैस की कीमतों में भी मजीद इजाफा होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, हुकूमत पाकिस्तान का बयानिया झूठ है। बानी PTI को 1 साल से नाहक जेल में रखा गया। हर गुजरते दिन के साथ हम तबाही के करीब जा रहे हैं। बानी PTI के अलावा कोई मुल्क को क्राइसिस से नहीं निकाल सकता। रऊफ हसन की मीडिया टॉक। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 5 जुलाई से मुल्क भर के पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर दिया। हड़ताल 1 दिन से ज़्यादा भी हो सकती है। कल रात से मुल्क भर के पंप्स ड्राई होना शुरू हो गए। वज़ीर ख़जाना, चेयरमैन FPR, चेयरमैन ओगरा से मुलाकात हुई। मुलाकात में नतीजा ना निकलने के बायस हड़ताल कर रहे हैं। डबल टैक्सेशन आइन की खिलाफवर्जी है। जब तक हुकूमत इसको वापस नहीं लेती कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समीर खान, चेयरमैन ऑयल टैंकर्स ओनर एसोसिएशन ने हड़ताल से इजहार लाताल्लुकी कर दिया। दौरान इद्दत निकाह केस बानी PTI और बुशरा बीबी की सदा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। अदालत ने 12 जुलाई तक हर हाल में फैसला सुनाना है। 8 तारीख तक कोशिश करें केस मुकम्मल हो जाए। जज अफजल मजोका के रिमार्क्स। अदालत के सामने गलत बयानी की गई वीडियो क्लिप में खावर मौनी का वादे कह रहे हैं कि मेरी साबिका अहलिया पाक खातून है। शिकायत को निंदा की जानिब से सिर्फ बयान दिया गया, कोई सबूत मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अगर यूनियन काउंसिल का प्रोसीजर मुकम्मल नहीं होता तो तलाक मुअस्सर हो जाएगी। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल। खावर मौनिका को इतना रिलीफ ना दिया जाए। पीर को 2 घंटे में दलाइल मुकम्मल कर लूँगा, वकील बैरिस्टर सलमान सफदर। अदालत ने केस की समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ एमना नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। आइंदा हफ्ते फैसला सुनाया जाएगा। जो अदालती ऑब्जर्वेशन है वो भी रिपोर्ट हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐसे कोई शिकायत नहीं भेजी कि गलत रिपोर्टिंग हुई। ऐसा क्या रिपोर्ट हुआ जिसे डायरेक्टिव जारी करना पड़ा? आपके सामने कोई कंप्लेंट आई होती तो यहाँ पेश कर देते। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का पैमरा वकील से मुकालमा। मजीद कहा कि मैंने हर सियासी जमात के रहनुमाओं के केस सुने, लेकिन कोई एक केस ऐसा नहीं जो मिस रिपोर्ट हुआ। अगर कहीं गलत रिपोर्टिंग हुई तो इसके लिए भी तरीकाकार मौजूद है। ज़माना आगे जा रहा है, वापस मत जाएं, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। नौकंडी में दर्जा हरारत 48, बिलबदीन में 47 रिकॉर्ड।
तुरबत पखर अटक नूरपुर थल में पारा 46 को छू गया। कराची में भी गर्मी का राज बरकरार, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड। शहर कायद में 7 जुलाई की रात या 8 जुलाई से बारिश मुतवक्के। बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं आज बलाई इलाकों में दाखिल होंगी। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान है। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग शहरियों की जिंदगी अजीरन। दिन रात बिजली की आंख मचोली ने शहरियों का सुख और चैन छीन लिया। मुल्क भर में 10 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। लानासिस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली बंद। खैबर पख्तूनख्वा में ज़बरदस्ती बिजली बहाल कराने का एक और वाक़या। वज़ीर खुराक KP ज़ाहिर शाह तूर और ज़बरदस्ती मर्दान के एक ग्रिड स्टेशन में दाखिल 5 से ज़ायद फीडर्स पर बिजली बहाल करा दी। BRTs मंसूबों को जल्द पाया तकमील तक पहुंचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। BRTs पर काम मुकम्मल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट दें। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत येलो लाइन BRT और रेड लाइन BRT से मुतालिक इजलास। रेड लाइन के लॉट 1, लॉट 2 बायोगैस डिपोज पर जारी काम की पेशरफ्त का जायजा। वफाकी हुकूमत का पाकिस्तान स्टील मिल्स को बंद करने का फैसला। सिंध हुकूमत पाकिस्तान स्टील मिल्स की जगह अपनी स्टील मिल्स लगाएगी। वज़ारत सनअत व पैदावार की स्टील मिल्स के लिए 700 एकड़ अराजी सिंध हुकूमत को देने की पेशकश। 700 एकड़ के अलावा ज़मीन सनती मकासद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। सेक्रेटरी सनअत व पैदावार की सैनेट की कायम कमेटी सनअत व पैदावार के इजलास में ब्रीफिंग। सियासी भर्तियाँ मुलाजमीन को मुस्तकिल करना पाकिस्तान स्टील मिल्स को ले डूबी। 2010 में इस वक्त की हुकूमत ने 4500 मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का कहा। मुलाजमीन के सालाना तनख्वाहों का हजम 3.1 अरब रुपये है। गुज़िश्ता 10 साल में स्टील मिल्स मुलाजमीन के तनख्वाहों की मद में 32 अरब रुपये अदा किए गए। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। कायमा कमेटी तिजारत में गधों का चर्चा। सेनेटर अनुशा रहमान की पूरे का पूरा गधा बरामद करने की तजवीज़। अभी सिर्फ गधे की खाल बरामद की जाती है। गधे का गोश्त बरामद करने की प्रोटोकॉल्स तय किए जा रहे हैं। सेक्रेटरी तिजारत की ब्रीफिंग। गधे की खाल बरामद होती है तो गोश्त कहाँ जाता है? गधे का गोश्त कहीं बाजारों में तो नहीं मिलता। सेनेटर समद अली के सवाल पर कमेटी इजलास में कह के गधे की बरामद पर कोई पाबंदी नहीं, गधों को बरामद किया जा सकता है। वज़ारत तिजारत व काम की वजाहत। टैक्स ना देने वालों की सिमें बंद करने का सिलसिला जारी। मजीद 2,10,000 नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिमें ब्लॉक कर दी गई। PTA ने टैक्स रिटर्न जमा कराने पर 61,996 सिमें बहाल की। पंजाब में आला अफसरान को लग्जरी गाड़ियों के बाद लग्जरी घर देने की तैयारी। ग्रेड 20, 21 और 22 के ब्यूरोक्रेट्स के लिए लग्जरी रिहाइश गाहों की तामीर शुरू। इब्तदाई तौर पर 27 घरों की तामीर के लिए 1 अरब 64 करोड़ 45 लाख रुपए की मंजूरी। DHA फेज 9 में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के लिए ITAP घरों की तैयारी मुकम्मल करेगा। नई सरकारी रिहाइश गाहों की तामीर मुकम्मल करने के लिए 1 साल 9 माह दरकार।